हेलो यस गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑन ए वाइल एंड डू वाइल लूप। सो आज के सेशन में हम लोग दोनों लूप्स कवर करेंगे। इट्स अ वाइल एंड डू वाइल। सो वाइल थोड़ा वास्टेड है, वाइल एज इट इज रिपीट होता है डू वाइल के साथ। सो ज़्यादा डू वाइल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वी आर फोकसिंग ऑन ए वाइल ओनली। ओके। सो अभी मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगने वाली दैट इज वीएस कोड की, जो कि स्टैंडर्ड एडिटर है, जो तुम लोग के CNCPP के प्रोग्राम रन करने में काम आएगा। ओके। सो व्हाट इज द नीड ऑफ वाइल लूप? सी, so what is the syntax? So it's a syntax of while loop. So inside a while, so write down while in bracket, it's a condition, then it's a statement. After that we use the expression part and then close it. So this is the syntax for while loop. See, for loop का each and every program आप लोग कर सकते हो using a while loop, but while के program for loop से नहीं होते. So vice versa it's not true. You can use a while or for, that is your choice. But the cases in which we use a while now, at that cases we are not using a for loop. Okay, so somehow वैसे कुछ programs है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे in which we use a while loop only. So why we use while instead of for? So in a for there is compulsory to use the initialization, condition and expression part. But inside a while that expression part is not mandatory in some programs. See, I'm saying in some programs, not all. Okay, that expression part is not compulsory. So for example, abhi see, it's a while is a top tested loop. So inside a C, there are three types of loops: for loop, while loop, and do while loop. So for loop and while loop, these are the entry control loops, and do while is a exit control loop. While loop is also called as a top tested loop, whereas do while is called as a bottom tested loop. So हम लोग आगे जाके उसके differences को समझेंगे. So before that, you just know about what is the difference between for and while. So in a for loop, expression part is compulsory, whereas in while loop it's not mandatory in some programs. Okay. So see, अभी हम लोग directly practical के ऊपर ही jump करते हैं. So कौन से program से जो you can do using a while. Okay. So suppose write a program to print first 10 numbers. See, ये program हम लोगों ने for loop में भी लिया था, यही program तुम while loop से भी कर सकते हो. So write a program to print first 10 numbers. तो यहाँ पे अगर मेंशन किया होगा उन्होंने यूज while only, then use a while, otherwise it's totally depends on you in what which कौन जिस लूप के साथ you are comfortable ना, just use that particular loop. If you are comfortable with for, then go through the for loop. If you are comfortable with while or do while, then just use a while and do while. Okay. So see, first I am entering here a header file. It's a include stdio.h. So C is a case sensitive language, so each and every case आएगा it's in a small letter. So it's stdio.h. Next यहाँ पे लिया मैंने mail and I want to print a number, correct, 1 to 10. So we required a one variable, so I am taking it as a e. So what happened in for loop? For में हम लोग initialization, condition, expression एक साथ भी लिखते हैं and उसको divide करके भी लिख सकते हैं. While के अंदर there is no part कि एक साथ लिखो, it's compulsory कि तुम लोग को उसको divide ही करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आएगा इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाइल के अंदर आएगा कंडीशन कहाँ तक जा रहा है. ओके, एंड देन वी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट. सो प्रिंट करना है मुझे, सो आई एम यूजिंग प्रिंट एफ. इट्स ए परसेंटेज, देन रिक्वायर्ड स्लैश एन, किसके अंदर लिखा मैंने, इट्स ए. ओके, एंड आफ्टर दैट जस्ट इंक्रीमेंट. सो सी, जैसे मैंने तुम लोग को फॉर लूप का एक बताया था कि यू कैन सेपरेट द फॉर लूप, बट देयर इज मैंडेटरी टू यूज ए सेमी कोलन आफ्टर ईच एंड एवरी इटरेशन पार्ट. ओके, सो वैसे वाइल में लिए, वाइल में जस्ट कंडीशन अलाउ होती है. Okay, so just save it and control R, refresh it. See, it gives me 1 to 10 numbers. Okay, done. So अभी ये run कैसे होता है देखो. So first, what is the value of A? It's 1. 1 less than or equal to 10, condition correct. Then it gives you value of A, that is 1. Then 1 is incremented by 1, so it becomes 2. 2 less than or equal to 10, condition correct, so it gives me 2. Then again it becomes 3. 3 less than or equal to 10, condition is correct, again gives me 3. So ये लूप चलेगा till your condition, जब तक तुम लोगों का condition wrong नहीं होगा तब तक. Okay, so this is our first program which is print table of first 10 numbers using while loop.
ओके। सो जैसे मैंने तुम लोग को बोला फॉर लूप के सारे प्रोग्राम वाइल से हो गए, बट वाइल के फॉर लूप से नहीं होते। सो ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो फॉर लूप से नहीं होंगे? सो फर्स्ट प्रोग्राम आता है उसके अंदर, सो इट्स राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ digits sum of digits in a given number. Okay, so what is the meaning of this program? Suppose मैंने number pass किया 1 2 3, so it gives me 1 plus 2 plus 3, it gives me answer 6. So whatever digit you are passing or whatever number you are passing now, you have to just print the addition of those numbers digits. Okay, so this is the program. ये प्रोग्राम हम लोग फॉर लूप से नहीं कर सकते. So what is the logic of that program? So first हम लोग को प्रोग्राम करके दिखाती हूँ यहाँ पे. So it's a include stdio.h. Next आएगा it's a main part. Then next we required a one number that is n. ओके, यूजर से लेंगे. सम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए सम. रूल बताया था मैंने, इफ सम आकर इन लूप देन इनिशियलाइज सपोर्टिंग वेरिएबल टू 0 एंड इफ मल्टीप्लिकेशन आकर देन इनिशियलाइज सपोर्टिंग वेरिएबल टू 1. अभी हम लोग को सम करना है, सो मैंने उसको इनिशियलाइज किया 0 से. डन. ओके, देन एक सपोर्टिंग वेरिएबल चाहिए मुझे, वो दिया मैंने टी. लॉजिक की रिक्वायरमेंट है इसलिए लिया. ओके, यूजर से वो नंबर लेना है. सो प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे लिखती हूँ enter any number. I want to accept that number through the user na. So enter any number, just scan that number. So we just scan it. It's a percent d comma and कौन सा number लिया है, that is n. Okay, so it's a n, just take it as a n. Okay, done. Then next is what we want to print the sum of that particular number. Okay, so I am using while. number के ऊपर प्रोसेस ही करना है कब तक, जब तक number greater than 0 है. Okay, you can use greater than 0 वाला condition or you can use while not equal to 0 also. There are two conditions. Use a greater than 0 or not equal to 0. Okay, then t becomes number modulus 10. So किसी भी number को जब तुम लोग 10 से divide करते हो ना, so it gives you last digit. ओके, टी इक्वल्स टू क्या, नंबर मॉड्यूलस 10. इससे क्या हुआ, मुझे मेरा लास्ट डिजिट मिल गया. अभी मुझे क्या करना है, उस डिजिट को सम के अंदर ऐड करना है. सो मैंने ऐड किया. देन नंबर को रिड्यूस करना है. सो यहाँ पे लिख दिया n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10. एंड लूप से बाहर आके तुम लोगों को सम को प्रिंट करना है. सो मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट स्लैश सम ऑफ डिजिट्स equal to percent d which is stored inside a variable sum. Done. Just save it, control R, refresh it. सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर लिया मैंने 823, इट गिव्स मी 5. नंबर लिया यहाँ पे 675, इट गिव्स मी 18. ओके, सो हाउ इट वर्क्स. अब इसका लॉजिक देखते, लॉजिक कैसे जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन. कंसिडर करो माई नंबर वैल्यू इज 15 या 14, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, जस्ट टेक इट. इट्स अ 40. वट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ सम, इट्स 0. सो हम लोग जाएंगे स्टेप 1 में. स्टेप 1 में जाते हो तो तुम लोग चेक कर रहे हो इज 14 ग्रेटर देन 0. यस, इट्स ट्रू. ट्रू है, देन तुम लोग वाइल में जाओगे. t becomes 14 मॉड्यूलस 10 करो. 14 को 10 से मॉड्यूल करो, इट गिव्स यू रिमाइंडर 4. ओके, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रिमाइंडर को सम के अंदर एड अप कर रहे हैं. सो सम इक्वल टू सम प्लस टी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल सम, इट्स 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, इट्स 4. सो इट गिव्स मी सम इक्वल टू 4. Then n equals to n. What is the value of n? It's a 14. 14 divided by 10. It gives me quotient. So what is the quotient? It's a 1. Okay. So यहाँ पे तुम लोगों का स्टेप 1 फिनिश हो गया. देन नेक्स्ट स्टेप 2. स्टेप 2 में जा रहे हैं. सो मेरे पास सम की वैल्यू है 4. व्हाट इज वैल्यू ऑफ नंबर, दैट इज 1. तुम लोग फिर से वाइल में जाओगे, चेक करोगे 1 ग्रेटर देन 0 है. यस, इट गिव्स मी ट्रू. ट्रू है तो वाइल के अंदर जा रहे हो. t इक्वल्स टू बन जाएगा 1 मॉड्यूलस t. So what is the value of t? It gives me 0. No, it gives me 1. करो. 1 divided by 10. Sorry, it's not a 20, it's a 10. करो. It gives you 1. What is the value of remainder? It's 1. Sum equal to again sum plus t. What is the initial value of sum? It's 4. What is the value of t? It's 1. It gives me 5. So what is the value of sum? It's a 5. n equal to 1 divided by 10. So what is the quotient? It gives me 0. So this is your step 2 over. Then next is step 3. Okay, inside is step 3. What is the value of sum? It's a 5. Okay, what is the value of n? It's 0. Then go to while loop, just check, is 0 greater than 0? No, condition is false. So you are not going inside a for loop. तुम लोग while loop, तुम लोग directly while से बाहर आओगे and just close it.
जब भी लूप से बाहर आ रहे हो, सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ सम, दैट इज 5। सो इस वजह से ये वर्क करेगा। ओके, सो जो भी प्रिंटिंग का मैसेज है वो तुम लोगों को लूप के बाहर ही लिखना है। लूप के बाहर लिखोगे तभी वो फाइनल आंसर देगा, अदरवाइज इट गिव्स यू ऑल द वैल्यूज। सी मैं क्या बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लूप के बाहर नहीं दिया, यहाँ पे ही प्रिंट किया, करेक्ट, एंड मैंने यहाँ पे आके ब्रैकेट को क्लोज किया, जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश इट। सो सी ये क्या कर रहा है, सपोज मैंने नंबर अभी दिया था 14, 14 दिया, क्या कर रहा है, इट गिव्स मी सम ऑफ डिजिट्स, 4 दिया फर्स्ट, नेक्स्ट में दिया 5। सो आई डोंट वांट दिस रिपीटिशन ना, रिपीटिशन नहीं चाहिए हम लोग को, एक ही वैल्यू चाहिए। सो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल इट्स ओके, ये 143 था, मैंने एक नया नंबर लिख दिया यहाँ पे, इट्स 123, सपोज इट्स अ नंबर लिख दिया 123, enter, see what happened, it gives me 3, then gives me 5, then gives me 6. So I don't want this repetition, and to avoid that repetition just write down that message outside of your while loop. ये एक ही बार आएगा, just save it, control or run it. Suppose I am writing or passing number, it's a 465, 565, it gives me 16. Okay, okay, so this is your second program which is print sum of digits in a given number, of a given number. Next, अभी हम लोगों ने इसमें क्या किया, जितने भी डिजिट्स वी आर पासिंग ना, वी आर प्रिंटिंग सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, बट माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, प्रिंट सम ऑफ first and last digits in a given number. So for example, if you are passing 1 2 3 now, so my requirement is what, just print a sum of 1 and 3, now it gives me 4। ऐसे प्रोग्राम हम लोगों को डिजाइन करना है। ओके, सो इसमें लॉजिक क्या आएगा, वी रिक्वायर्ड ए सम वेरिएबल, बट जो कांस्टेंट नंबर है फर्स्ट एंड लास्ट उसकी सम करेगा, सो नो नीड टू इनिशियलाइज इट बाय 0। फर्स्ट डिजिट स्टोर करने के लिए वेरिएबल लूंगी फर्स्ट, एंड लास्ट स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज करूंगी लास्ट। सो सी मैंने तुम लोग को क्या बोला था, कोई भी नंबर हो उसको जब तुम लोग 10 से मॉड्यूल करोगे, सो यू गेट ए लास्ट डिजिट। ओके, लास्ट डिजिट तुम लोग को मिलता ही है, फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट, जस्ट रिमूव इट। हम लोग इतना ही प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट है, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्लैश, दिस इज माई लास्ट डिजिट ना, सो यहाँ पे लिखती हूँ लास्ट डिजिट इक्वल टू परसेंट डी, किसके अंदर स्टोर किया वो हम लोगों ने, दैट इज इनसाइड ए लास्ट, जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश। ये लॉजिक याद रखो, अब बाद में हम लोग को बहुत जगह पे लगने वाला है। इफ यू आर मॉड्यूल 10 बाय एनी नंबर ना, सो यू गेट द लास्ट डिजिट। अभी हम लोगों को इजीली मिलता नहीं है फर्स्ट डिजिट, तो उसके लिए लगाना है तुम लोगों को वाइल लूप। वाइल में जाओगे, नंबर के ऊपर प्रोसेसिंग करोगे, कब तक, जब तक ग्रेटर दैन 0 है तब तक। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट इक्वल टू नंबर, बट इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए, आई वांट टू रिड्यूस इट, एंड नंबर रिड्यूस करने के लिए लॉजिक क्या था, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से लूप से बाहर आके प्रिंट करो सम फर्स्ट को, सो स्लैश यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट डिजिट इक्वल टू परसेंट डी, एंड ये किसके अंदर लिख दिया मैंने, दैट इज इनसाइड ए फर्स्ट, जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश इट। ओके, यहाँ पे नंबर लिख दिया मैंने 123, सी लास्ट इज 3 एंड फर्स्ट इज 1। कौन सा भी नंबर लो, इट्स रनेबल है, कितना भी बड़ा नंबर लो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके, एंड देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, आई वांट टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, एंड देन प्रिंट दैट सम, सो प्रिंट है, यहाँ पे लिख रहे हो स्लैश सम इक्वल टू परसेंट डी, इसके अंदर स्टोर किया है, दैट इज इनसाइड अ वेरिएबल सम, सो जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश इट। सी यहाँ पे नंबर लिख दिया मैंने, इट्स 123, सो सी इट गिव्स मी सम 4। फॉर एग्जाम्पल नंबर पास किया 453, इट गिव्स मी 7। ओके, सो इस वजह से तुम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स एन एंटायर नंबर। ओके, सी write a program to reverse an entire number। okay, so write a program to reverse an entire number। so मुझे नंबर को रिवर्स करना है, so रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 23 लिया ना, so it gives me 32, ऐसे मुझे करना है। ओके, so भी यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया n, इसकी जरूरत नहीं मुझे, जस्ट रिमूव दैट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया नंबर लेना है, उसको रिवर्स करने का लॉजिक है, सो नंबर के लिए वेरिएबल लिया नम, एक सपोर्टिंग वेरिएबल चाहिए आर, उसको इनिशियलाइज किया 0 से, एंड टी एक सपोर्टिंग वेरिएबल चाहिए, वो लिया टी। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे वाइल में, नंबर के ऊपर प्रोसेस ही करना है, कब तक, जब तक वो ग्रेटर दैन 0 है तब तक। लॉजिक देखो क्या है इसका, टी इक्वल्स टू होगा नंबर मॉड्यूलस 10,
एंड देन r इक्वल्स टू होगा r इंटू 10 प्लस t एंड देन n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10. ओके, इतना प्रोग्राम करने से ये लॉजिक्स लर्न करने पड़ेंगे तुम लोगों को. इट्स कंपलसरी, देयर इज नो शॉर्टकट. A slasher, it's a reverse number. So reverse number equal to percent %d and which is stored inside a variable r. So just save it, control r, refresh it. Suppose मैंने यहाँ पे नंबर लिया, it's a 1 2 3, it gives me 3 2 1. Suppose I'm writing is a 34, it gives me 45 3. Suppose I'm writing 45, it gives me 54. Okay, so अभी ये वर्क कैसे करता है इसका लॉजिक देखते हैं हम लोग. So how it works. ओके, सो कंसिडर करो मैंने नंबर का वैल्यू लिया, इट्स अ 67. सो दिस इज माय नंबर, इट्स अ 67. ओके, सो दिस इज योर स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या है तुम लोगों का, नंबर का वैल्यू है 67. सो मैं यहाँ से हटाती हूँ. सो स्टेप 1 में जब जाओगे, सो योर वैल्यू ऑफ n इज 67, वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 0. तुम लोग जाओगे वाइल में. वाइल में जाने के बाद चेक करोगे 67 ग्रेटर देन 0 है. यस, इट्स ट्रू. ट्रू है तो तुम लोग वाइल में जा रहे हो. डोंट क्लोज इट. वाइल में जा रहे हो. अभी तक हम लोगों ने इसको क्लोज किया ही नहीं है. ओके, अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे. ओके, t इक्वल्स टू नंबर. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ नंबर, इट्स 67. मॉड्यूलस करो 10, क्या आता है आंसर, t गिव्स यू 7. r इक्वल्स टू हो जाएगा r इंटू 10 प्लस t. सो यहाँ पे आने के बाद व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ r, इट्स 0. 0 इंटू 10 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट्स 7. So now it gives me 7 only. Okay, then n equal to 67 divided by 10. So in this scenario it gives you 6. Okay, तो यहाँ पे स्टेप 1 ओवर हो गया. हम लोग टर्न करेंगे स्टेप 2 पे. स्टेप 2 में जा रहे हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, इट्स द 6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r नाउ, इट्स 7. ओके, सो तुम लोग जाओगे वाइल में. वाइल में जाने के बाद यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज 6. सो इज 6 ग्रेटर देन 0, यस इट्स ट्रू. ट्रू है तो तुम लोग वाइल में जाओगे. t इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 6 मॉड्यूलस 10. ओके, 6 मॉड्यूलस 10 करो, क्या आता है आंसर, इट गिव्स मी 6 अगेन. ओके, सो इट गिव्स मी 6 अगेन. देन r इक्वल टू r इंटू 10. व्हाट इज द करंटली वैल्यू ऑफ r, इट्स 7 इंटू 10 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट्स 6. इट्स नॉट o, इट्स 0. ओके, सो काउंट करो कितना हो रहा है. सो r बिकम्स 76. ओके, n इक्वल्स टू हो जाएगा n. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, इट्स 6. 6 डिवाइडेड बाय 10, सी n गिव्स मी 0. ओके, यहाँ पे तुम लोगों का स्टेप 2 कवर हो गया. नेक्स्ट इज स्टेप 3. स्टेप 3 में जा रहे हो, n का वैल्यू है 0 तुम लोग के पास एंड r का वैल्यू है 67. तुम लोग जाओगे वाइल में. वाइल में जाने के बाद चेक करोगे, इज 0 ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन इज फॉल्स. फॉल्स है तो लूप से बाहर आ गए. व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ r, दैट इज 76. जस्ट प्रिंट इट. ओके, इस वजह से चलेगा तुम लोगों का रिवर्स का प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट इज पैलिंड्रोम. सो नेक्स्ट आएगा राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर entered number is palindrome, palindrome or not palindrome. So what is the meaning of palindrome? So palindrome means ऐसा नंबर जिसको रिवर्स किया तो फिर से वही नंबर मिलेगा. रिवर्स करो इसको, इट गिव्स यू 1 to 1. ओके, नेक्स्ट लिया मैंने सपोज 2 डबल 3 2, रिवर्स करो, यू गिव्स यू डबल 2 3 2. ओके, ऐसा नंबर होता है पैलिंड्रोम नंबर. सो इस प्रोग्राम में हम लोगों को रिवर्स की ज़रूरत है. तो रिवर्स का लॉजिक यहाँ पे एज इट इज रखेंगे. इससे बाहर आते हो तब तक तुम लोगों को रिवर्स नंबर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, ओरिजिनल नंबर को रिवर्स के साथ चेक करना है. तो सी, ओरिजिनल नंबर का जो वैल्यू है वो एंड में हो रहा है तुम लोगों का 0. तो मुझे 0 नहीं चाहिए, ए ओरिजिनल नंबर चाहिए. तो उसको स्टोर करने के लिए एक सपोर्टिंग वेरिएबल लेते हैं हम लोग नो. देन मैं क्या करूंगी, इस एन के ऊपर तो प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसको सिक्योर करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, दैट इज एनो. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर आएंगे, चेक करेंगे इफ माई वैल्यू ऑफ एनो, ओके, इक्वल टू योर रिवर्स नंबर दैट इज आर, देन
मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी. सो इनसाइड ए प्रिंट एफ वी आर राइटिंग स्लैश एन नंबर इज पैलिंड्रोम. करेक्ट है ना. अगर रिवर्स नंबर है तुम लोगों का ओरिजिनल नंबर, अगर दोनों मैच हो रहे देन नंबर इज पैलिंड्रोम. अदरवाइज एंड दैट्स व्हाई वी यूज एल्स पार्ट. एल्स यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट एफ स्लैश एन नंबर not palindrome. Okay, just save it, control or refresh it. Suppose I am writing here number, it's a 12, it gives me number is not prime palindrome. Suppose मैंने यहाँ पे लिखा it's a 1221, it gives me number is palindrome. Okay, so इस वजह से while loop का यूज होता है. अब ये ऐसे प्रोग्राम से जहाँ पे तुम लोग for loop यूज ही नहीं कर सकते because we don't require a expression part here. Okay, तो ये बेसिक प्रोग्राम से ये तुम लोग वाइल थ्रू कर सकते हो. और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वाइल थ्रू. यू हैव टू जस्ट ट्राई आउट योर ओन वे. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. रिमेनिंग सेशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.